गूगल मीट में जाइए और स्टार्ट कर दीजिए। गूगल मीट स्टार्ट कर दीजिए। Yes, beta Deepti. Chetna madam, please start. Good morning to one and all. I welcome the principals of all the colleges, the coordinators, and dear students. I would like to tell that these principles are ethical and civic minded and encourage strategic thinking, innovations, and actions. And hence, we have reached on the 8th day of this online program successfully. I should say successfully, actually, the students will judge us, but I think we are having good number of students who are live on the YouTube. Yes, first of all, I would like to thank Dr. Usha Sakure Madam, Principal Madam of MANOHARAO KAMDI Mahavidyalaya Nagpur, Dr. Jyoti Patil, Principal of RENUKA Mahavidyalaya Nagpur, Dr. Shraddha Anil Kumar, Principal of DAYANAND KANYA Mahavidyalaya Nagpur, Dr. Haridas Vishnuji Ladke, officiating Principal of late Rajendrasingh ALIAS Baba VYAS Arts and Commerce College, KONDAHLI, Dr. Lalchand Jadhav, Principal of Mahatma Gandhi Arts and Commerce College, PARSEONI District, Nagpur. It's really a nice joint venture where we have experts from all different colleges to share their talk with the students. Today we are going to have Dr. Dipti Jain as a resource person. She is an assistant professor and ardent poetess. वो एक कवि भी है. At present she's working at Anjuman Girls Degree College of Arts. She's a NEC coordinator. She shoulders so many responsibilities in her college that any program for the students, Dipti Jain Madam is invited and remembered. She participates in all the programs that are held in her college. She's involved, she has many research articles in national and international journals published. She's also presented research articles in conferences and seminars. She is an executive member of literary societies, including Click and Shakespeare Society of India, and is actively involved in various programs conducted by them. We know her since long because she has worked in the Department of English at DAYANAND ARYA Mahavidyalaya. So I know she will definitely give her lecture and it will be very useful, beneficial, and she's a knowledgeable lady. She will definitely do the best. I know her and I know her experiences. She's a very good teacher. So let us begin with the teaching. I invite Dr. Dipti Jain on the virtual platform and hand over the platform to Dr. Dipti. Welcome. Good morning, madam. Good morning, ma'am. Thank you for your kind words. Thank you so much for showing all the confidence on me. Thank you. Okay, now before I start, I would also like to thank all the principals of the organizing colleges that Chetna ma'am has already mentioned for this joint venture, and obviously it will benefit for the students of the third sem. Without wasting any time, I think I should start my lecture, which is on the poetry called Yusuf by James Russell. So I'll just start my sharing my screen. Video. Is it visible? Is my screen visible? Yes, Dipti, it is visible. Okay. Yes, madam. Yeah. So
Today we'll be doing a poetry by James Russell Lowell. The title of the poetry is Yusuf, right? So, good morning, all the students who are there. I hope you'll understand whatever I teach you and you'll enjoy it too. Okay, so first of all, we'll start with the introduction of the poet. Now, as I have already told you, that this poetry, which is named Yusuf, was penned by an American romantic poet, James Russell Lowell. Now, if we talk about the poet, he was a poet of the 19th century. He was born on 22nd February 1819 and died on 12th August 1891. Now, if we go in detail about the poet, he was born in an aristocratic family, right? And apart from being a poet, he was also a critic. Actually, he had studied law, but his inclination was towards literature. So he left his practice of law and he became a poet as well as critic, editor, and a diplomat. Diplomat meaning he was involved in the politics of those times also. Now, he advocated the anti slavery reforms and American Renaissance. Now, we are all aware that America, at one point of time, there was this thing called slavery going on. Negroes, they were purchased and sold, and they were treated as slaves. So, he was very much against this slavery practice and he advocated the anti-slavery reforms and American Renaissance meaning the revival of the classical literature. So actually America, we can say, came into the scene of literature very late. It was England, Great Britain, which dominated the literary scene, and it was among James Russell Lowell, who, along with some other writers of America, who brought in this American Renaissance. Now, he was also associated with a group called Fireside Poets, which was connected with the New England poets. So, he had a connection with England poets and he was influenced by them, and all those things which the English poets were experimenting. He brought those experiments into, he experimented those things into America. And most of his poems, like even this, when we see this poem, most of his poems are connected with the themes of morality, forgiveness, and philosophy of happiness. So we can say that he was a poet who wanted to bring goodness and spread goodness all around him. So this poetry, if we go into this poetry, so this poetry is actually a short story written in a form of poem. So एक छोटी सी कहानी जैसी है ये. और जब कहानी को हम लोग पोएट्री फॉर्म में लिखते हैं तो उसको हम लोग नरेटिव पोएम भी बोलते हैं. सो वी कैन एक्चुअली क्लासिफाई दिस पोएट्री एज अ नरेटिव पोएम. अब ये जो कहानी है, it's not new in the sense maybe most of you must have heard it with name change, क्योंकि एक मॉरल वाली एक स्टोरी है, हम लोग इसको बोल सकते हैं. अब इसमें जो दो कैरेक्टर्स हैं, एक यूसुफ है और एक इब्राहिम है, जिनके अराउंड ये स्टोरी रिवॉल्व करती है, या हम लोग बोल सकते हैं कि जिनकी ये कहानी है. तो दे करस्पॉन्ड द कैरेक्टर्स फ्रॉम द क्रिश्चियन बाइबल एज जोसेफ एंड इब्राहिम. तो अगर हम लोगों ने बाइबल पढ़ा तो दो कैरेक्टर्स हमको उसमें मिलेंगे, एक का नाम जोसेफ है और दूसरे का नाम इब्राहिम है. तो ये दो कैरेक्टर को ही लॉवेल ने यूसुफ और इब्राहिम करके ये पोएट्री में डिपिक्ट किया है, उन्होंने इसमें शो किया है. एंड दीज कैरेक्टर्स आर नॉट ओनली फाउंड इन बाइबल बट कुरान ऑल्सो, बिकॉज कुछ ना कुछ जो बाइबल की जो चीजें हैं हम लोग बोल सकते हैं वो ओवरलैप करती है कुरान में. सो बोथ दीज कैरेक्टर्स आर फाउंड, जोसेफ एंड इब्राहिम जो हैं वो हमको बाइबल में भी मिलते हैं और कुरान में भी मिलते हैं. सो एज आई वाज टेलिंग यू कि दिस पोएट्री इज इट्स अ स्टोरी. ओके, एक छोटी सी कहानी है जिससे आखिरी में हम लोग बोल सकते हैं ना फॉरगिवनेस, कि कैसे माफी से बड़ा कुछ नहीं होता. अगर हमने किसी ने कुछ गलती की है और हमने उसको माफ कर दिया तो उससे ज्यादा बड़ा कुछ नहीं होता. सो दिस इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी, हम लोग बोल सकते हैं. सो
The poem is about an Arab man Yusuf and his hospitality to an outcast Ibrahim. तो कैसे उसके पास एक जिसको बहुत सारे लोग जिसका पीछा कर रहे हैं, पावरफुल जो लोग हैं उसको पीछा कर रहे हैं, उसको मारने के लिए उसके पीछे आ रहे हैं, एंड ही इज थ्रोन आउट, आउटकास्ट मीनिंग उसको जो बोलते हैं ना जाति बिरादरी से उसको बाहर कर दिया गया है। तो ऐसा एक इंसान अपने आप को बचाने के लिए किसके पास आता है? यूसुफ के पास आता है। एंड द पोएम एग्जिबिट्स यूसुफ गुड नेचर, सर्विस, काइंडनेस एंड फॉरगिवनेस। और हमको ये पोएम से वही समझ में आता है कि यूसुफ इज सच अ गुड नेचर्ड person, and he actually spreads happiness, service, kindness, और सबसे बड़ा जो उसमें क्वालिटी हमको दिखती है यूसुफ में वो है फॉरगिवनेस। क्योंकि आई वुडंट लाइक टू टेल यू बिफोर कि क्या इसने किया है, ग्रेजुअली यूल कम टू नो कि इब्राहिम जो है उसने इसके साथ कितना बुरा किया है, यानी ऐसा काम किया है कि जिससे कोई भी किसी को माफ ना कर सके, बट स्टिल यूसुफ इज सच अ गुड मैन दैट वो उसको फॉरगिव कर देता है। तो ये पोएम में हमको एक्चुअली ये चीज देखने मिलती है, इट डिपिक्ट्स कि हमको अब बुराई की जगह बुराई आगे बढ़ाना है, या बुराई की जगह अगर हम या हमको अच्छाई करना है। सो इट डिफेक्ट्स द कंफ्यूजन टू रिटर्न इविल फॉर इविल, यानी बुराई की जगह हम लोग, यानी किसी ने हमारे साथ बुरा किया तो हमको उसके साथ बुरा करना है, या ये चॉइस हमारी होती है कि गुड फॉर इविल, कि हमको सामने वाले ने तो बुरा कर दिया लेकिन हमको अच्छाई उसको देना है। सो इट इज द स्ट्रगल बिटवीन रिवेंज एंड फॉरगिवनेस। तो यूसुफ जो है ही इज कंफ्यूज्ड कि ये जो इंसान है मेरे पास जो मेरी शरण में आया है, वी कैन से कि जो मेरे पास आया है, तो इससे मैं बदला लूं या उसको मैं फॉरगिव करूं। सो देयर आर बोथ द चॉइसेस आर हिज, बोथ, यानी ही कुड हैव डन एनीथिंग, उसके हाथ में पार था कि वो इब्राहिम जो है उसको या तो उससे बदला भी ले ले या उसको माफ कर दे। सो और the climax is that Abraham had slewed Yusuf's son, so he was a culprit for him, but he was also his guest and he could not punish guest. So इब्राहिम जो आया था यूसुफ के पास, तो उसने एक पॉइंट ऑफ टाइम में क्या किया था, यूसुफ के बेटे को मर्डर किया था, मारा था। तो ऑब्वियसली यानी एक फादर के लिए हाउ पेनफुल इट इज कि उसके जीते जी उसके बेटे को मार दिया गया था। एंड नाउ व्हाट ही सीज इज कि जो कल्प्रिट है, जो गुनहगार है, राइट, ही इज स्टैंडिंग बिफोर हिम, इब्राहिम उसके सामने खड़ा है। और अब वो वही जो मैंने बोला कि वो रिवेंज भी ले सकता है, उससे बदला भी ले सकता है, या उसको फॉरगिव कर सकता है, बट ही फॉरगिव्स यूसुफ, क्योंकि ऑब्वियसली आई विल रिपीट दैट ही इज अ गुड नेचर्ड पर्सन, उसके अंदर काइंडनेस, फॉरगिवनेस, ये सारी जो क्वालिटीज है, गुड क्वालिटीज है, उसके अंदर ये भरी हुई है। सो ही फॉरगिव्स। और जब हम ये पोएम पढ़ते हैं ना, तो हमको कहीं तो भी हमारा जो इंडियन कस्टम है दैट इज अतिथि देवो भव, क्योंकि जब इब्राहिम यूसुफ के पास आया है तो यूसुफ ने उसको शरण दी, उसको अपने घर में, अपने जो टेंट है उनका, उसका जो घर है उसमें उसने उसको वहां रखा, उसको खिलाया पिलाया। और उसका बाद में जब पता चलता है कि इसने तो मेरे बेटे को मारा है, तो अब वो सोचता है कि नहीं, ये तो मेरा मेहमान है, और हमारा इंडियन जो कस्टम है हम लोग इस चीज को फॉलो करते हैं, अतिथि देवो भव। सो ऑब्वियसली ये पोएट्री में भी वही रिफ्लेक्ट करता है कि सिंस वो उसके घर का मेहमान था तो यूसुफ उसको मार नहीं पाया। So at the end Yusuf pleases God by forgiving Abraham, so वो उसको माफ कर देता है। और उसको ऐसा लगता है यूसुफ को कि मैंने इसको माफ करके कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, यानी ये अपनी शांति के लिए मैंने किया, क्योंकि हमको पता है कि अगर बदला लेते हैं, बदला तो ले लिया, लेकिन वो जो चीज अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो दिन रात वो चीज हमको खाती रहती है, हम लोग चैन से जी नहीं पाते हैं। लेकिन एक बार अगर हमने किसी को माफ कर दिया तो ऑब्वियसली वो सारी जो बुराइयां हैं, राइट, वो हमारे दिल से चले जाती है। सो वी कैन से दैट इट इज एन इंटरेस्टिंग पोएम स्प्रेडिंग लाइफ वैल्यूज लाइक काइंडनेस एंड फॉरगिवनेस। तो ये पोएट्री से हम लोग एक्चुअली बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारे कोर्स में जो चीजें
दी गई है, तो ऑब्वियसली ये सब चीजें इसलिए दी गई है कि ये जो न्यू जनरेशन है, आप लोग जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हो, ठीक है, यू आर द फ्यूचर सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री, सो यू शुड इनकलकेट गुड वैल्यूज, आप लोग एक अच्छे संस्कार आप लोगों के अंदर में आए। तो शायद इसीलिए मुझे लगता है कि जो जिन्होंने ये सिलेबस प्लान किया है, उन्होंने ये सारी ऐसे कुछ लेसन्स और कुछ पोएम्स इंक्लूड किए हैं, सो दैट यू लर्न फ्रॉम देम। सो ये जो पोएट्री है, इसका मेन थीम इज कि एज वन लैम्प लाइट्स अनदर, नो ग्रोज लेस, सो नोबलनेस एनकिंडल नोबलनेस। सो एक जैसे एक है ना, एक दिए से अगर हम दूसरा दिया जलाते हैं तो पहले दिए की रोशनी कम नहीं होती, उल्टा पूरा और जो रूम है वो और रोशन हो जाता है। तो अगर मैंने अपनी अच्छाई किसी और को दी तो मेरी अच्छाई कम नहीं होगी, लेकिन दुनिया में एक दूसरा एक अच्छा इंसान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब इससे एक्चुअली आई कैन रिमेम्बर वन मूवी, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, शायद आपको क्लिक हो जाए, कि एक कोई पिक्चर थी जिसमें सलमान खान था, एंड देयर वाज जो हीरोइन है, शी डज सम गुड थिंग्स, वो कुछ अच्छी चीजें करती है, और जब उसको कोई रिटर्न में उसको बोलता है कि इसके लिए इसके बदले में तुमको क्या दूं, तो वो हमेशा बोलती है कि दो और लोगों का अच्छा करना और उनको यही करना, यही करने बोलना। तो ऑब्वियसली इससे क्या होता है कि गुडनेस जो है इट स्प्रेड्स। तो ये पोएट्री का भी हम लोग बोल सकते हैं, शायद मकसद यही था पोएट का, कि काइंडनेस जो है, फॉरगिवनेस की जो दया भाव और जो क्षमा कर सके हम किसी को, तो उससे बेहतर, बिकॉज इट गिव्स अस पीस, वो हमको पीसफुल बना देता है। सो दैट इज द मेन थीम ऑफ द पोएट्री। ओके, so now we come to the poem. So I'll just recite the poetry once for all of you, and then I'll explain you stanza wise, right? So the poetry starts with a string, as I told you it's a story, तो ऐसा मैं पढ़ूंगी भी तो आपको लगेगा कि मैम कोई कहानी पढ़ रही है, so it's a story. So here it starts with, a stranger came one night to Yusuf's tent, saying, behold one outcast and in dread, against whose life the bow of power is bent, who flies and hath not where to lay his head. I come to thee for shelter and for food, to Yusuf, called through all our tribes the good. अच्छा, चिल्ड्रन यू विल ऑब्जर्व कि मैंने कुछ लाइन, कुछ ऐसे वर्ड्स है ना, उनको अंडरलाइन किया है. नाउ ऑल दीज वर्ड्स एक्चुअली आर बिब्लिकल वर्ड्स, यानी एक टर्मिनोलॉजी है जिसको इंग्लिश में, यानी ये मॉडर्न वर्ड्स नहीं है, ये जो वर्ड्स हैं ये बाइबल में यूज किए गए हैं और पोएट ने उनको ही यूज किया है टू मेक द पोएट्री मोर इफेक्टिव. सो ही हैज यूज्ड दीज वर्ड्स. सो जो मैंने ये वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन किया, जैसे हैथ, ये वाले जो स्टैंजा में आपने देखा हैथ, ठीक है, like he has nowhere to lay his head. Then the meaning I have come to you. So ये words use किए गए हैं. So you have to just remember that these words are called biblical words, okay, because they have been used in Bible, hence the name biblical words. So he says, this tent is, now when the stranger comes, so now what does Yusuf replies? He says, this tent is mine, said Yusuf, but no more. Then it is God's. Come in and be at peace. Freely shall thou partake of all my store, as I of his who buildeth over these. A tents his glorious roof of night and day, and at whose door none ever yet heard nay. So Yusuf entertained his guest that night, and waking him day said, here is gold, my swiftest horse is saddled for thy flight. Depart before the praying day gold grow bold, as one lamp lights another, no nor grows less, so nobleness enkindled nobleness. This inward light the stranger's face made grand, which shines from all self-conquest, kneeling low. He bowed his forehead upon Yusuf's hand, sobbing, O Sheikh, I cannot leave thee so. I will repay thee all this thou hast done unto that Abraham who slew thy son.
Take thrice the gold, said Yusuf, for with thee into the desert never to return. My one black thought shall ride away from me, firstborn, from whom by day and night I yearn. Balanced and just are all of God's decrees. Thou art avenged, my firstborn, sleep in peace. Okay, so this is the poetry. So here what we see is that how he has come, the stranger, that is Abraham, he has come to Yusuf's tent and he stayed there. And Yusuf, he being a very humble man, a very a good man, he entertains his guest, and he's so good that he even gives her, like, before he wakes him up early in the morning, he gives him his horse and lots of money, and he says that now you run away so that your enemies, they shouldn't reach here. Okay, so this is the poetry. Now, one minute. It seems. Okay, now I'll just explain it to you stanza wise. So this is the stanza 1. So here we see that how a stranger came one night to Yusuf's tent, saying, behold one outcast. Now, outcast meaning a person who has been thrown out. ठीक है, जिसको अपनी जो बोलते हैं ना जाति बिरादरी से जिसको क्या कर दिया गया है, बाहर भगा दिया गया है, निकाल दिया गया है. So he is in dread, and dread meaning fear. बहुत डरा हुआ है क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे जो लोग हैं उसकी जान लेने के लिए उसके पीछे पड़े हुए हैं. So he comes there and he says, so behold one outcast and in dread, against whose life the bow of power here meaning powerful people. यानी जो लोग जिनके पास बहुत ताकत है, ताकतवर जो लोग हैं, वो इसके पीछे पड़े हुए हैं, इसकी जान लेना वो चाहते हैं. And obviously he doesn't know, इब्राहिम इसका नाम है, तो ही डजंट नो वेयर टू गो. और उसने यूसुफ के बारे में बहुत सुना हुआ है कि यूसुफ जो है वो कोई भी आ जाए उसके द्वार पर, जो बोलते हैं ना उसके दरवाजे पर कोई भी आ जाए तो वो उसको वापस नहीं भिजाता, वो उनको एंटरटेन करता है, वो उनको अपने पास रखता है, खिलाता पिलाता है, और he helps him in whatever possible ways. यानी वो उनकी हेल्प करता है, जो भी तरीका यानी उसको सही लगता है वो उस तरीके से उनको हेल्प करता है. और इसीलिए इसमें बोला गया है, he says I come to thee, as I told you, thee meaning you, it's a biblical word meaning you. So I come to thee for shelter and for food. तो इब्राहिम उसके पास किस चीज के लिए आया है? For shelter. shelter उसकी शरण में आया है वो, कि वो उसकी रक्षा करेगा, वो उसको अपने दुश्मनों से बचाएगा. और किसके लिए आया है? फूड के लिए भी आया है, क्योंकि ऑब्वियसली ही इज रनिंग फॉर हिज लाइफ, अपनी जान बचा के दौड़ रहा है, तो उसके पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं है. तो इसीलिए वो यूसुफ के पास आया है, ताकि यूसुफ जो है उसकी रक्षा भी करेगा और उसको खाना भी देगा. क्योंकि यूसुफ की जो बोलते हैं ना कि यूसुफ कैसे जाना जाता है, ही इज कॉल्ड थ्रू ऑल अवर ट्राइब्स द गुड. यानी यूसुफ फेमस है, किस चीज के लिए फेमस है? वो सब लोग उसको किस उससे जानते हैं, क्या एडजेक्टिव उसके साथ जुड़ा हुआ है कि ही इज द गुड मैन, वो बहुत अच्छा इंसान है. राइट, सो वही, right? So this is how the stanza 1 goes. And a stranger, I'll repeat that, a stranger comes to him, and this stranger, he has been abolished from his society. उसको अपने जो उनकी सोसाइटी है उससे क्या कर दिया गया है? बाहर भगा दिया गया है. एंड यूसुफ जो है, ही इज अ शेख, वो एक अच्छा इंसान, अच्छा तो इंसान है इन द सेंस कि उसके पास वेल्थ भी है, उसके पास पैसा भी है, उसके पास पावर भी है. तो ऑब्वियसली इसीलिए वो उसके पास आया है, इब्राहिम उसके पास आया है, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं. एंड ही इज इन फियर, क्योंकि उसके पास कोई जगह नहीं है, ना रहने की, ना छुपने की, ना खाने की, और अब वो भाग नहीं सकता, और वो भाग नहीं पा रहा था इब्राहिम. इसीलिए वो, हम लोग ये बोल सकते हैं, मजबूरी में वो किसके पास आ गया? यूसुफ के पास आ गया, क्योंकि उसको पता है कि यूसुफ ही है जो उसकी रक्षा करेगा. Right, so this is stanza 1, and in the stanza 2 it is Yusuf who is speaking. So
What does Yusuf say? Yusuf says, "This tent is mine," said Yusuf, "but no more, then it is God's." तो यूसुफ उसको बहुत ही फ्रेंडली वार्मली वे में, उसको वार्म वे में क्या करता है, वेलकम करता है. एंड ही सेज कि ये मेरा टेंट तो है, लेकिन मेरे अलावा ये टेंट किसका है, गॉड का भी है, ऊपर वाले का भी है. राइट. सी अगेन हियर द फिलोसफी ऑफ लाइफ कि हम लोग ना कुछ लेकर आए हैं दुनिया में और ना कुछ हमको लेकर जाना है. हम सब चीजें यहीं छोड़कर वापस चले जाएंगे. तो यहाँ पे जो हम लोग ये मेरा तेरा इस चीज के लिए जो लड़ते हैं, तो ऑब्वियसली हमारा कुछ भी नहीं है. एक बार हम जब ये दुनिया छोड़ के चले जाने वाले हैं, तो यहाँ पे हम कुछ लेकर तो जाने वाले, सिर्फ अच्छाइयां जो है, लोग हमको सिर्फ, अगर हमने कुछ अच्छाइयां की है हमारी लाइफ में, तो सिर्फ वही चीज लोग हमारी याद करते रहेंगे और बाकी सब चीजें तो छूट जानी है. सो दिस इज व्हाट ही सेज कि ये टेंट तुम बोल रहे हो कि मेरा है और तुम मेरे पास आए हो, लेकिन ये टेंट मेरा तो है, लेकिन मेरे अलावा ये किसका है, मेरे से एक्चुअली ज्यादा ये ऊपर वाले का भी है, गॉड का भी है. एंड दैट इज व्हाई ही सेज, कम इन एंड बी एट पीस. यानी आ जाओ, अंदर आ जाओ, शांति से रहो, यू नीड नॉट वरी. यानी मैं तुमको क्या करूंगा, शेल्टर दूंगा. जैसे गॉड ही प्रोटेक्ट्स अस ऑल, है ना, गॉड ने हमको क्रिएट किया है, ऊपर वाले ने हमको बनाया है, एंड ही सेव्स अस फ्रॉम ऑल द प्रॉब्लम्स, ही प्रोटेक्ट्स हिज क्रिएशन. सो दैट इज व्हाई ही सेज कि मैं शायद गॉड का मैसेंजर हूँ, गॉड ने मुझे सब, यानी खुद गॉड हर जगह प्रेजेंट नहीं हो सकता है, इसलिए गॉड हैज सेंट सम मैसेंजर्स, राइट, सम पीपल who does the good deed that God is supposed to do. है ना. अगेन हमारे सब में कुछ अच्छाइयां रहती है और कुछ बुराइयां रहती है. तो अच्छाइयां जो सारी रहती है वो गॉड गिवन रहती है, और अगर हमारे अंदर कुछ बुराइयां हैं, कुछ इविल है, राइट, तो ऑब्वियसली वो जो हमारा शैतान वाला जो पार्ट रहता है ना, वो रहता है ना. इट इज अप टू अस, ये हमारे ऊपर है कि हमको किसको किस पे हावी होने देना है. अच्छाई को बुराइयों के ऊपर हावी होने देंगे या बुराइयों को अच्छाई के ऊपर हावी होने देंगे. तो यहाँ पे जो यूसुफ है, उसने क्या किया, अच्छाई को बुराइयां उसके अंदर से वो कोशिश करता है कि मैं हटा दूं, पूरी मिटा दूं, और मेरे अंदर सिर्फ क्या रहे, अच्छाइयां ही रहे. तो जैसे भगवान के दर पे अगर हमने कुछ गलत काम भी किया है और अगर हम भगवान के दर पर जाते हैं, तो हमको पता है कि अगर हम सच्चे मन से माफी मांगते हैं तो भगवान भी हमें माफ कर देता है. सो ऑब्वियसली सो इज यूसुफ. ही सेज कि कम और शांति से रहो. फ्रीली शैल दाउ partake of all my store, as I of his who buildeth over these, attends his glorious roof of night and day, and at whose door none ever yet heard. ने तो वो बोल रहा है अंदर आ जाओ और जो भी मेरे पास सामान है, पार्टेक मीनिंग यू कैन शेयर वॉट एवर इज इन माई स्टोर. यानी मेरा जो स्टोर है ना, बावर्ची खाना है, जो किचन है, वो तुम्हारे लिए खुला है. अब तुमको जो चीज खाना है वो तुम जाकर ले सकते हो, खा सकते हो. एंड ही सेज कि as I of his who builded over these a tents his glorious roof of night and day. तो जैसे मैंने ये टेंट बनाया है, वैसे ही ऊपर वाले ने भी हमारे लिए एक रूफ बनाया है. और वो रूफ क्या है, दिन और रात, है ना. हमको ऊपर वाले ने क्या किया, आधे आधे समय में वो हमको कवर करके रखता है, अपना प्रोटेक्शन देता है. दिन रहता है और रात रहता है. एंड ही सेज एंड एट हुज डोर नन एवर येट हर्ड ने. और वही कि ऊपर वाले से अगर हम सच्चे दिल से कुछ मांगते हैं तो वो हमको नहीं बोलता. सो ने मीनिंग कभी भी हमने ऊपर वाले के मुंह से नो नहीं सुना है. बट देन अगेन हमारा जो रिपेंटेंस है ना, सच्चे दिल से हमको जाना पड़ेगा ऊपर वाले के पास, तभी वो हमको मदद करेगा. अगर हमारे अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं, ठीक है, जो भी बुरी क्वालिटीज, अगर वो सब हम अपने अंदर रख के उनके ऊपर वाले के पास जाएंगे तो ऑब्वियसली वो हमारा साथ नहीं देगा. बट देन अगर हम एक सच्चे मन से सारी बुराइयां और ट्रू वे में अगर हम रिपेंट करते हैं, पछतावा होता है अगर हमने कुछ गलत भी किया है, और फिर हम ऊपर वाले से माफी मांगते हैं, उसके दर पर जाते हैं, तो वो नहीं, ने कभी भी, ने मीनिंग नो, तो वो कभी भी नहीं बोलता. तो इसीलिए यूसुफ ने भी उसको बुलाया एंड ही सेज कि नहीं, यू आर वेलकम, यू कैन स्टे फॉर एज लॉन्ग एज यू वांट, राइट.
And now we come to the stanza third, right? So Yusuf entertained his guest that night, and waking him a day said, "Here is gold, my swiftest horse is saddled for thy flight. Depart before the praying day grow bold, as one lamp lights another, nor grows less." So he says, दूसरे दिन उसने सुबह उसको उठा दिया, waking him, ar meaning here before, ठीक है, यानी दिन सूरज निकलने से पहले ही उसने, यूसुफ ने क्या किया, अपने जो उसका गेस्ट था इब्राहिम, उसको जाकर उसने उठाया, और उठाकर उसने क्या बोला कि ये लो, ये सोना लो, और मेरा जो स्विफ्टेस्ट हॉर्स है, जो सबसे अच्छा घोड़ा है, उसको मैंने तैयार करके रखा है, ताकि तुम, फॉर दाई फ्लाइट, दाई हियर मीनिंग योर फ्लाइट, फ्लाइट है ना, तुमको भागने में वो क्या करेगा, वो घोड़ा तुमको यहाँ से दूर ले जाने में तुम्हारी मदद करेगा. सो दाई अगेन इज अ बिब्लिकल वर्ड. सो हियर ही सेज कि मैंने वो घोड़ा क्या करके रखा है, तैयार करके रखा है. सो यू टेक, ऑब्वियसली वो बाहर जाएगा तो उसको कुछ पैसा भी चाहिए रहेगा. सो ही इज गिविंग हिम gold also. So he gives him gold and his swiftest horse, the best horse that Yusuf possess, he gives that horse to Ibrahim. और उसको वो क्या सजेस्ट करता है, डिपार्ट बिफोर द प्रीइंग डे ग्रो बोल्ड, है ना, उसको पता है कि उसके पीछे करने वाले फिर क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे, या कोई पड़ोसी जाकर बता देगा कि अरे वो जो इब्राहिम है वो तो यूसुफ के टेंट में छुपा हुआ है. तो कहीं ना कहीं से अगर खबर पहुंच जाएगी इब्राहिम के दुश्मनों में, तो वो लोग आकर उसको क्या कर देंगे, मार देंगे. तो इसलिए वो बोल रहा है कि दिन होने से पहले ही क्या करो, तुम यहाँ से निकल जाओ, ताकि तुमको कोई देख ना सके. एंड हियर ही सेज अ वेरी, जो थीम जो है पोएट्री का, दैट इज व्हाट इज स्टेटेड हियर. ही सेज, एज वन लैम्प लाइट्स अनदर नॉर ग्रोस लेस. तो जैसे कि एक लैम्प जो है दूसरे लैम्प, अगर हम दूसरा लैम्प जलाते हैं और रोशनी जो है पहले लैम्प की कम नहीं होती, तो वैसे ही वैसे ही अगर मैं तुमको हेल्प करूंगा तो मेरी जो अच्छाई है वो कम नहीं होगी, मेरी अच्छाई क्या हो जाएगी, एक्चुअली और बढ़ जाएगी. अब इतना अच्छा काम जो है यूसुफ ने इब्राहिम के लिए किया, तो ऑब्वियसली इब्राहिम इज टच्ड. यानी इब्राहिम को तो पता ही था, पहले से ही पता था कि मैंने यूसुफ के बेटे को मारा है, लेकिन वो आकर अभी तक उसने इब्राहिम को ये चीज जो है वो उसके सामने एक्सेप्ट नहीं की थी, अपना जो क्राइम है वो एक्सेप्ट नहीं किया था. एंड इट इज नाउ दैट ही एक्सेप्ट्स हिज क्राइम. यानी जो बोलते हैं ना, अगर कोई हमारे साथ बुरा कर रहा है और अगर हम उसके साथ अच्छा करते जाएं, बहुत अच्छा एक बार ही कर दे, तो वो सामने वाले का जो गिल्ट है वो आ जाता है, और कहीं ना कहीं फिर उसमें बदलाव आता है कि अरे भाई, मैं तो इसके साथ कब कितना बुरा कर रहा हूँ, लेकिन ये तो बुरा करता ही नहीं है, ये तो अच्छा ही किए जा रहा है. और जब ना जो बोलते हैं ना कि हमेशा बुराई की जो है वो हार हो जाती है, अच्छाई की जीत हो जाती है. अगर कंटिन्यूअसली अगर हम वो अच्छाई करते ही रहे, तो वैसा ही फिर किस पे इफेक्ट पड़ा, इब्राहिम पर भी इफेक्ट पड़ा. जब इसने इतना अच्छा काम किया कि उसको पहले तो शेल्टर दिया, उसको फिर फूड भी दिया, फिर दूसरे दिन जल्दी से उसको उठा के उसने बोला कि लो, ये मेरा बहुत सबसे बेस्ट हॉर्स है, ये हॉर्स लो, ये गोल्ड लो. और जब यानी किसी को पता चलने से पहले कि तुम यहाँ छुपे हुए हैं, तुम्हारे दुश्मन आने से पहले तुम क्या करो, यहाँ से निकल जाओ, राइट. तो ऑब्वियसली इब्राहिम जो है सो ओवरबर्डन्ड विद दिस काइंडनेस, यानी उसको समझ में नहीं आया कि ये जो उसका एहसान है, ये जो उसकी अच्छाई है, उसका मैं कैसे बदला चुका हूँ, राइट. सो दैट इनवर्ड लाइट द स्ट्रेंजर्स फेस मेड grand, which shines from all self-conquest. Kneeling low, he bowed his forehead upon Yusuf's hand, sobbing, "O Sheikh, I cannot leave thee so. I will repay thee all this thou hast done unto that Abraham who slew thy son." सो अचानक से वो जो स्ट्रेंजर है, जो कि एक बुरा आदमी था, तो उसका भी चेहरा अचानक से चमक
उठा, उसके अंदर की जो रोशनी बोलते हैं ना, इनर लाइट जो है, ही वॉज एनलाइटेंड, यानी अचानक से उसकी बुराई गायब हो गई, उसके अंदर एक रोशनी, एक अच्छाई की जो रोशनी है वो जाग पड़ी। क्योंकि अगर देखो, अगर यूसुफ के पास इब्राहिम आया है और यूसुफ को अगर पता चल जाता, वो उसको मार देता, तो यानी ये जो कहानी है ये कभी बनती ही नहीं, राइट। ये कहानी बनी क्यों? क्योंकि अच्छा बुराई की अच्छाई, यानी जीत जो हुई वो अच्छाई की हुई, तो इसीलिए ये कहानी आगे बढ़ी। तो ऑब्वियसली इब्राहिम जो है, ही रियलाइजेस कि मैंने कितना बुरा काम किया था और मैं इस इंसान के पास आया हूँ और वो मेरे साथ इतना अच्छा किए जा रहा है, ऑल्दो ही डजंट नो, यूसुफ डजंट नो कि ही इज द वन हु हैज किल्ड माय सन, बट स्टिल कोई भी स्ट्रेंजर के साथ इतना अच्छा कोई भी नहीं करता है ना। अपने पैसे दे रहा है, अपना घोड़ा दे रहा है, इज डूइंग एवरीथिंग दैट ही कैन डू टू हेल्प हिम। सो ही नील्स डाउन, ही इज सो ओवरवेल्म्ड, यानी उसकी काइंडनेस से वो इतना, बोलते हैं ना, दिल भर आया, ही इज ओवरवेल्म्ड, कि वो बदल गया। और वो क्या करता है, ही बोर्ड हिज फोरहेड अपॉन यूसुफ्स हैंड, और वो यूसुफ के हाथ पकड़कर उसको उसके सामने झुक जाता है और रोते हुए, सॉबिंग, ही सेज, ओ शेख आई कैन नॉट लीव दी, सो कि मैं तुमको छोड़कर नहीं जा सकता, तुम मुझे रिपे करना है ना, मैंने इतना बुरा काम किया। और वो मुंडी उसके सामने क्यों झुका दी कि लो, मैंने तुम्हारे बेटे को मारा था और अब तुमको ये तुम मुझसे क्या कर सकते हो, बदला ले सकते हो, अगर तुम चाहो तो लो, मैं मेरी मुंडी तुम्हारे सामने झुका रहा हूँ। इफ यू वॉन्ट टू किल मी, आई एम रेडी टू बी किल्ड बाय यू, आई एम रेडी टू बी पनिश्ड, क्योंकि मैंने तो बुरा काम किया था और उसके लिए पनिशमेंट मुझे मिलना ही चाहिए। अब तक तो मैं भागता फिर रहा था, लेकिन नाउ आई एम रेडी फॉर माई पनिशमेंट, एंड दैट इज वाई ही सेज। और फिर वो उसको बताता है कि ये सब जो तुमने किया मेरे लिए, ये तुमने किसके लिए किया है? unto that Abraham who slew thy son, तो unto meaning to and thy meaning your son, so तुमने किसके साथ ये सारी जो अच्छाइयाँ की है, ये सारे जो एहसान तुम कर रहे हो, ये किसके लिए कर रहे हो? उस इब्राहिम के लिए जिसने तुम्हारे बेटे को मार दिया था। एंड दैट इज व्हाई ही सेज कि नाउ प्लीज टेक रिवेंज, तुम मुझसे बदला ले सकते हो, क्योंकि मुझे क्या करना है, रिपे करना है। मैंने जो ये सिंफुल डीड्स किए, ये जो मैंने बुरे कर्म किए, बोलते हैं ना, अगर हमने बुरा काम किया तो उसके लिए अगर हम खुद को भी पनिश कर देते हैं, हिंदू माइथोलॉजी के भी हिसाब से है ना, कई लोग, अगर हमको लगता है कि हमने बुरा काम किया तो हम अपने आप को जैसे उपास रखते हैं या अपने आप को कुछ तकलीफ देते हैं, ताकि हम वो बुरा काम वापस कभी ना करें। क्योंकि अगर हमको रियलाइज कर हो गया कि बुराई की है, और उसके लिए अगर हमने रिपेंट, इंग्लिश क्रिश्चियन माइथोलॉजी में देयर इज दिस रिपेंटेंस यानी यू पनिश योरसेल्फ, आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि आपसे गलती हो गई, और अगर आपने सच्चे मन से सॉरी मांगा ऊपर वाले से या जिसके लिए भी आपने कुछ बुरा किया है, तो यू विल ऑलवेज बी फॉरगिव्ड। और बोलते हैं ना, ये जो आपका जो पाप है वो क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है, फिर वो आपके बुराइयों में गिनती उसकी नहीं होती, अगर आपने सच्चे मन से माफी मांग ली और उसके लिए आपने खुद को पनिश कर दिया। सो दैट इज व्हाई ही इज सेइंग कि इफ यू वांट टू किल मी, इफ यू वांट टू पनिश मी, इफ यू वांट टू टेक द रिवेंज, अगर तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो तो ले लो, क्योंकि मैंने गलत काम किया था, मैंने सिंफुल डीड किया था, एंड नाउ आई एम रेडी टू रिपे फॉर दैट डीड। Okay, so he bows down crying, he's crying, he is sobbing. And this is the last stanza. And now what does Yusuf does? He doesn't kill him, he doesn't punish him. He says, take thrice the gold, said Yusuf, forthwith thee into the desert, never to return. My one black thought shall ride away from me, firstborn for whom by day and night I yearn. Balanced and just are all of God's decrees. Thou art avenged, my firstborn sleep in peace. And यूसुफ ने उससे बदला तो नहीं लिया, उल्टा उसने उसको बोला कि तुम 3 गुना सोना मुझसे लेकर जाओ और इतनी दूर चले जाओ कि तुम वापस मेरे सामने कभी मत आओ।
राइट। पहले तो वो थोड़ा सा शॉक्ड था, राइट, उसको समझ में नहीं आया, बट देन ग्रेजुअली ही सेज कि 3 गुना पैसा सोना मुझसे लेके जाओ और चले जाओ, और मेरे सामने नहीं आओ, क्योंकि यूसुफ के अंदर अब कौन सी वाला जो द्वंद चल रहा है, वो द्वंद काय का चल रहा है कि मैं इससे रिवेंज लूं या मैं इसको फॉरगिव करूं, कि मैं इससे बदला लूं अपने बेटे की मौत का या मैं इसे माफ कर लूं। यानी देखो, यूसुफ भी क्या है, एक इंसान है, और अगर हमारे साथ कोई बुरा करता है तो सबसे पहला एक नॉर्मल इंसान के दिमाग में तो आएगा कि इसने मेरे साथ बुरा किया, तो मैं तो अब इससे बदला लूंगा ही लूंगा। वो थोड़े से फिर हमको महानता में बढ़ना पड़ता है, थोड़ा महान बनना पड़ता है, कि फिर हम लोग सोचते हैं कि हटा, बदला लेकर भी क्या होगा, है ना। फिर ये वाले जब हम अपने आप को जस्टिफाई करते हैं कि हटा, छोड़, माफ कर देता हूँ, और जब हम लोग के दिमाग में ये वाला जो फॉरगिवनेस वाला थॉट आता है कि माफ कर देता हूँ, तब हम लोग बोल सकते हैं कि भगवान के करीब हो जाते हैं, बिकॉज गॉड ऑलवेज फॉरगिव, गॉड नेवर punishes anyone. So वो वही बोल रहा है कि take thrice the gold and run away, don't come back to me, क्योंकि यूसुफ नहीं चाहता कि जब भी इब्राहिम सामने आए और उसको अपने बेटे की याद आए, या ये उसके अंदर थॉट आए कि अभी मुझे इससे बदला लेना है, so he doesn't want that, so he says go away. एंड इसीलिए भी वो उसको बोलता है कि क्योंकि तुम चले जाओगे तो मेरे मन में जो बदले की भावना है वो भी मेरे मन से क्या हो जाएगी, दूर चले जाएगी। समझ रहे हो कि इट सिंबलाइजेस कि कैसे, यानी जब तक वो इंसान सामने रहेगा, जब तक इब्राहिम यूसुफ के सामने रहेगा, तो यूसुफ को अपने बेटे की याद आती रहेगी, उसको लगेगा कि नहीं, मुझे इससे बदला लेना है, इसलिए उसको इतना पैसा दे देता है कि अब तुम कभी मेरे सामने मत आना, राइट। तो उसको वो क्या कर देता है, माफ कर देता है। एंड ही सेज कि यानी मेरा जो फर्स्ट बॉर्न, और जो ये बेटा जिसने इब्राहिम ने जिसको मारा था, वो उसका फर्स्ट बॉर्न है ना, पहला बेटा रहता है, हम लोग बहुत अटैच, पहला जो बच्चा रहता है माँ बाप उससे बहुत अटैच रहते हैं, तो ये सेज कि वो मेरा फर्स्ट बॉर्न था और उसको मैं दिन रात याद करता रहता हूँ, आई यर्न फॉर हिम, आई फील कि काश वो मेरे पास होता, बट ऑब्वियसली यू हैव किल्ड हिम। बट देन ही सेज कि balanced and just are all God's decrees. इसे यानी तुमने माफी जो मांग ली है मुझसे, अब मैं तुमसे बदला नहीं लूंगा, मैं तुमको क्या कर लूंगा, मैं तुमको माफ कर दूंगा, क्योंकि बैलेंस एंड जस्ट आर ऑल ऑफ गॉड्स डिक्रीज। डिक्रीज गॉड ने ये ऑर्डर दिया है, ऊपर वाले ने ऑर्डर दिया है कि हम लोगों को माफ करें, वो जैसा करता है वो करने के ऑर्डर्स मिले हैं। इज मीनिंग आई हैव बीन गिवन ऑर्डर बाय गॉड, आई हैव बीन ऑर्डर्ड बाय गॉड कि अगर कोई माफी मांग रहा है तो यू शुड फॉरगिव हिम। ही सेज thou art avenged, he says जब तुमने माफी मांग ली, मैंने माफ कर दिया, और इससे मेरा बदला क्या हो गया, मैंने तुमसे बदला ले लिया। अब क्या होगा, इब्राहिम के दिमाग में वो चीज घूमती रहेगी कि मैंने कितना बुरा किया था तो भी इस इंसान ने मुझे कुछ नहीं किया, एंड मैंने तुमसे बदला ले लिया, एंड नाउ माय फर्स्ट बॉर्न, जो मेरा बेटा है, ही स्लीप्स इन पीस, यानी शायद मैं अगर तुमसे बदला लेता तो मेरे बेटे की आत्मा को क्या पहुंचता, दुख पहुंचता, ने किसी को मारा है या बदले की भावना उसके आई है, तो ही सेज कि मैंने तुमको माफ कर दिया, और उससे शायद अब क्या होगा कि जो मेरा बेटा है वो क्या हो जाएगा, बहुत पीसफुल हो जाएगा, ठीक है। ही इज स्लीपिंग इन पीस। So this is the poet. So I hope so. Here the message is thus. It's very simple, right? अच्छाई दोगे, अच्छाई वापस आएगी, और अगर अच्छाई दोगे तो अच्छाई दुनिया में फैलेगी। तो वही कि जैसे एक लैंप, अगर हम एक दिए से दूसरा दिया जलाते हैं, तीसरा दिया जलाता है, तो रोशनी फैलती है, रोशनी बढ़ती है, लोगों के लाइफ से अंधकार जो है वो भागता है। तो वैसे ही एक इंसान ने, एज अ ह्यूमन being, we should also practice this kindness, this forgiveness,
है ना, हमारे अंदर जितनी भी अच्छी क्वालिटीज हम लोग इनकलकेट कर सके, जितनी भी अच्छी क्वालिटीज हम लोग अपने अंदर ला सके, उतना ही एक्चुअली पीसफुल हमारी लाइफ होगी। हम अच्छाई किसी और के लिए नहीं करते हैं, अच्छाइयाँ अगर हमको करना है तो वो हमको ही खुशी देती है। वी आर हैप्पी। अगर मैं बोलूं कि अगर एक मॉर्निंग में आप निकले हो एंड इफ यू हैव हेल्प्ड somebody in need, अगर आपने उसको हेल्प करा तो you'll observe that आपका पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है, क्योंकि आपने किसी को हेल्प किया, उसने आपको थैंक यू बोला, तो ऑब्वियसली यू फील सो हैप्पी कि यू हैव सॉल्व द पर्पस, है ना, आपकी लाइफ का कुछ पर्पस है, आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो, एंड इट इज यू हु बिकम हैप्पी। है ना, दूसरों के लिए हमको अच्छा करना है ना, हम उसका एहसान, उस पे एहसान कर रहे हैं, उसके साथ अच्छा कर रहे हैं, ये बोलकर भी अच्छाई जो है वो खत्म हो जाती है। अगर हम लोग अच्छाई कर रहे हैं तो वो किसी और के लिए नहीं करते हैं, हम लोग अच्छाइयाँ जो है हम लोग खुद के लिए ही करते हैं, बिकॉज वी फील हैप्पी एंड पीसफुल। The sport department organizes. Yes, thank you, Dipti madam. Yes, ma'am. Yes, it was really very thought-provoking, nice presentation, unique. I think it will definitely inculcate amongst the students the motto of simple living and high thinking. Yes. Now, I would like to tell the program of tomorrow. Tomorrow we will be having a guest lecture by Dr. Pragyasa Upadhyay on Lord Ulin's Daughter, written by Thomas Campbell. Yes, I have given the announcement for tomorrow. But before I end, I would really like to thank all the resource persons, all the principals of the colleges, the coordinators, and the audience for being present on this virtual platform. And we hope the same in the next lecture series. Thank you to one and all. Yes. Thank you, ma'am. Thank you so much. Welcome. Usha madam, with your consent, shall I announce that the class is over? Okay, yes. Yes, thank you, madam. The program is over for today. Children, you go again and again on the YouTube, study and be a successful student, so that efforts and initiatives taken by Sakure madam will definitely be beneficial to them and useful to us also. Thank you. Meet tomorrow. See you tomorrow at sharp 10 a.m. for the next lecture by Dr. Pragyasa Upadhyay. Have a nice day. Thank you.